It was in the aftermath of the Second World War that the United States replaced the Great Britain as new balancer and a peace broker, and that for the first time in the history of global politics, a non-European state emerged on the surface to author an order in its own image. While so doing, the United States established a host of new institutional frameworks to regulate interstate transactions, navigate conflicts, and maintain peace and stability. The order so introduced and implemented by the new peace broker came to be known as liberal meritocratic order, for the reason being that it was supervised by a democratic country with greater proclivity for liberal values. According to G. John Eikenberry, the order was initially abounded and was meant to ensure security and stability of the European landscape. But with the disintegration of Soviet Union and with the fall of Berlin Wall, the United States-led order transformed from being a bounded and a bipolar configuration to an outward and unipolar operating system. Such a tectonic shift in the realm of global politics was celebrated by political scientists as a unipolar movement and the end of history. But unfortunately, those celebrations proved short-lived, due in part to America's greater inclination towards personalization of power, exploitation of authority, militarization of institutional arrangements, weaponization of financial choke points, and practice of liberal interventionist strategies. As a result, need for an alternative was felt by revisionist and dissatisfied nations. In this pattern, Farid Zakaria says, the United States-led order started with the fall of Berlin Wall and ended with the fall of Saddam regime in Iraq. The country, according to Zakaria, abused power via unlawful interventions and protracted wars. Like always, and with the dissipation of its legitimacy, the United States started searching for an enemy. In this connection, Arundhati Roy comments that, in order to remain relevant, the United States has never shied away from doctoring an enemy. So, being a declining power, the United States imported the conception of Thucydides' trap and found a rival in the form of China. Yes, hello people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Against the backdrop of preceding discussion, coming back to US-China New Cold War. US-China New Cold War के लिए बहुत सारे writers and columnists different titles and terminology use करते हैं, like Triangular Cold War, Trilateral Cold War, यानी उस Cold War में रशिया को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि रशिया यूएस की अथॉरिटी, यूएस का इन्फ्लुएंस और यूएस की जो प्रेजेंस है यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड मिडिल ईस्ट, वहाँ पे रशिया यूएस को मिलिटरीली चैलेंज कर रहा है। जबकि चाइना की बात अगर कर लें तो अक्रॉस द ग्लोब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों, इकोनॉमिक मॉडल्स हों, कल्चरल नॉर्म्स हों, टेक्नोलॉजिकल जो सोफिस्टिकेशन है या टेक्नोलॉजी है, इन टर्म्स में चाइना यूएस की जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज करता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इट्स अ ट्राइलेटरल कोल्ड वॉर, जिसमें यूएस, चाइना एंड रशिया जो है ना वो लॉक्ड हैं। सो इस लेक्चर में जो पहला सेक्शन है या जो पहला एरिया हम देखेंगे वो हमारे पास है ब्रीफ अकाउंट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कब से एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म एंड ग्रो करना शुरू हुए। तो पॉइंट फर्स्ट है, कोशिश हमने की है इस स्लाइड में तमाम सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर के बनाएं, ताकि जो इस लेक्चर को सुनने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। पॉइंट फर्स्ट है, the United States and China are locked in a new Cold War and fighting against each other at diverse fronts. Diverse fronts से मुराद यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमी है, और इतने जितने भी पॉसिबल डायमेंशन बन सकते हैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। सो इस वजह से डाइवर्स फ्रंट्स। सेकेंड पॉइंट है, द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर Obama administration institutionalized anti-China rhetoric and strategic competition with new global workshop. इस सेंटेंस और इस पॉइंट में जो टर्मिनोलॉजी जो समझने वाली है वो है न्यू ग्लोबल वर्कशॉप। द इकोनॉमिस्ट के जो एडिटर हैं उनके अकॉर्डिंग चाइना हैज़ बिकम 21st century's वर्कशॉप। सो इस वजह से यहाँ पे न्यू ग्लोबल वर्कशॉप की जो टर्मिनोलॉजी है वो रेफर करती है टू चाइना। सो द पॉइंट इज एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विथ चाइना कर लें और विद द ग्लोबल वर्कशॉप, न्यू ग्लोबल वर्कशॉप थ्रू इट्स पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2011 में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था in the form of or under the title of Pivot to Asia Strategy,
जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल है यूनाइटेड स्टेट्स का, एंड इन द कमिंग डेकेड्स द यूनाइटेड स्टेट्स वुड कन्फ्रंट एंड कंटेन चाइना बाय ऑल मीन्स। सो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है सिंस देन, यानी तब से द एग्जिस्टिंग पावर विच इज यूनाइटेड स्टेट्स एज पर द कंसेप्शन ऑफ थ्यूसिडीज ट्रेप, the United States is authoring policies after policies, introducing alternative models, cultivating security groupings, and fostering counterweights. इस पॉइंट में जो पॉलिसीज आफ्टर पॉलिसीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स टाइम एंड अगेन हैज़ बिन पब्लिशिंग डिफरेंट पॉलिसीज एम्ड एट कन्फ्रंटिंग, competing and containing China. नेशनल डिफेंस पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो या ऐसी जितनी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को एज अ स्ट्रेटेजिक राइवल जो है ना वो डिक्लेयर किया है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मेंशन किया है ऑथरिंग पॉलिसीज आफ्टर पॉलिसीज। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव मॉडल्स। अब हमें ये पता है कि 2013 ऑनवर्ड्स चाइना ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको बहुत सारे वेस्टर्न राइटर्स कंसिडर करते हैं कि इट्स चाइनास 21st सेंचुरीज मार्शल प्लान। तो यूएस चाइना के इस डेवलपमेंटल मॉडल को कर्टेल करने के लिए या इसके लिए एक अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क है, द इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ऐसे जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स या तो डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व है या अपने अलायंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उन सब का पर्पस यही है कि चाइना का जो प्री है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट किया जाए ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस गैप को फिल किया जाए। फिर आगे लिखा है कल्टिवेटिंग सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स। अब हमने काफ़ी अपने सारे लेक्चर्स में सिक्योरिटी ब्लॉक्स की बात की है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स को फॉर्मुलेट कर रहा है इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट चाइना। उनमें से I2U2 आप लोगों को पता है, उसके बाद क्वाड है, सो फोर्थ। फिर नेक्स्ट है फोस्टरिंग काउंटरवेट्स एज बुलवॉक्स अगेंस्ट चाइना। एशिया की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को एक ऐसा यानी कि एक्टर और एक ऐसी स्ट्रेटेजिक विंडो यहाँ पे चाइना इंडिया को बना लिया है जो कि इन फ्यूचर इन केस ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू कंट्रीज, इन केस ऑफ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को पिच कर सकता है एज अ काउंटरवेट टू चाइना। जबकि हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो वहाँ पे इजराइल वो एक्टर है जो कि एक स्ट्रेटेजिक विंडो है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इन फ्यूचर यूज़ किया जाए, या यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि जो चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है या जो चाइना इन रोड कर रहा है मिडिल ईस्ट में उसके ऊपर नज़र रखी जाए थ्रू इजराइल। सो ये हमारे पास इस लेक्चर का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है। आगे मूव ऑन कर लेते हैं तो सेकंड जो एरिया है उसमें देखते हैं कि हाउ इज़ चाइना थ्रेटनिंग द यूएस हेजेमनी। क्योंकि आप लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो चाइना को अपना राइवल कंसीडर कर रहा है, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि चाइना ने ऐसा क्या किया है या चाइना ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना से एक थ्रेट है या एक जो यूएस का एक थ्रेट परसेप्शन है वो बाय द टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्जैसरबेट कर रहा है। तो पॉइंट फर्स्ट है चाइना अ डिससेटिस्फाइड एंड रिविजनिस्ट पावर। प्रीवियस हमने लेक्चर में अपनी जो थ्योरी थी पावर ट्रांजिशन थ्योरी उसमें हमने मेंशन और एक्सप्लेन किया कि एक डिससेटिस्फाइड एंड रिविजनिस्ट पावर क्या है। ये एक ऐसी पावर है जो एग्जिस्टिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है उससे अगर सेटिस्फाइड ना हो तो उस स्टेट को हम कहते हैं ये रिविजनिस्ट है या रिवेंजिस्ट है। तो चाइना चूँकि एक रिविजनिस्ट है, वजह उसकी ये है कि यूनाइटेड स्टेट लेड जो ऑर्डर है वो इमर्जिंग और राइजिंग इकोनॉमीज को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो चाइना इन बहुत सारे कंट्रीज स्पेशली रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान वो इस अरेंजमेंट से या यूएस लेड ऑर्डर से खुश नहीं है। सो चाइना इज डिससेटिस्फाइड, रिविजनिस्ट, अनहैप्पी विथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, inability of US-led operating system to accommodate rising powers and discriminatory practices of US। चाइना के ऊपर और चाइना के जो फर्म्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन यूएस लगाता रहा है। उनमें से जो नोटेबल है वो हवावे कंपनी है जो कि 5G टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही थी। तो यूएस और उसके जो एलाइज हैं उन्होंने चाइना को टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन से रोकने के लिए उनके जो फर्म्स हैं या टेक्नोलॉजी हाउसेस हैं उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से चाइना को बड़ा इशू है। सेकेंड पॉइंट है बीइंग द न्यू इकोनॉमिक पावर हाउस, China introduced BRII as the 21st century's Marshall Plan, establishing institutional arrangements like SCO, Shanghai Cooperation Organization, RAIDS, Regional Anti-Terrorism Structure, Asia Infrastructure Investment Bank, New Development Bank, BRICS, de-dollarization of global trade, and ऐसे बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स चाइना ने इंट्रोड्यूस किए हैं या चाइना ने इस्टेब्लिश किए हैं ताकि उनके थ्रू एक ऐसा ऑर्डर बनाया जा सके जो कि मोर डेमोक्रेटिक हो, जो कि मोर ओपननेस पर बेस करे।
ये एक इशू है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि चाइना इज थ्रेटनिंग यूनाइटेड स्टेट्स हेजेमनी और यूनाइटेड स्टेट्स लेजिटिमेसी। एक थ्रेट चाइना की तरफ से यूएस को ये है। फिर आगे अगर देख लें, थर्ड पॉइंट, रेंडरिंग इम्पेटस टू ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ओपननेस। डोनाल्ड ट्रंप के आने से लेकर अब तक यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डी ग्लोबलाइज या ग्लोबलाइजेशन से जो है ना वो बैक ट्रैक कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूएस में एक जॉबलेसनेस लाइक सिचुएशन है। यूएस की जो डोमेस्टिक मार्केट एंड डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं वो लॉस में जा रहे हैं। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरीके से ग्लोबलाइजेशन की या तो स्पीड को मिनिमाइज किया जा सके या इसको ऑल टुगेदर एंड किया जा सके। जैसे डोनाल्ड ट्रंप इरा में हमें देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्राइबलिज्म या ट्रंपिज्म जो पॉलिसीज थी या जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक मर्केंटलिस्ट जो पॉलिसीज रही हैं, उनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की जो स्पीड थी वो पहले स्लोबलाइजेशन हुई, फिर बाद में ऑलमोस्ट नोबलाइजेशन। तो जबकि चाइना ऑन द अदर हैंड इज ट्राइंग टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड चाइना की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज में इकोनॉमिक ओपननेस और जो ट्रेड है इन प्रोसेसेस को फर्दर एक्सेलरेट एंड स्पीड अप किया जा सके, ताकि कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस हैं या जो फिनोमिनन हैं उनको वहाँ पे इंश्योर कराया जा सके, जो कि एक पॉइंट ऑफ थ्रेट है, कंसर्न है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। सो इस कनेक्शन में पॉइंट थर्ड हमने लिखा है कि चाइना इज रेंडरिंग इम्पेटस टू ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ओपननेस इन अ टाइम व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज गॉन इनटू पॉलिटिकल आइसोलेशनिज्म। क्योंकि आप लोगों को पता है कंसेप्शन यूएस हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल आइसोलेशनिज्म या आइसोलेशनिज्म की जो पॉलिसीज हैं यूएस के डिफरेंट प्रेसिडेंट्स प्रैक्टिस एंड फॉलो करते रहे हैं अपने टाइम्स में। इकोनॉमिक मर्केंटिलिज्म है, डोमेस्टिक कमोशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक पोलराइजेशन है, एक डीपोलराइजेशन है यूएस सोसाइटी में, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश ये है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रिटेक्स में जो फ्री फ्लो ऑफ पीपल आइडियाज़ वहाँ हो रहे हैं, उनकी वजह से यूएस की अपनी जो वैल्यूज़ हैं या यूएस जो गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी है वो अंडर थ्रेट है। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू slow down the pace of globalization or to impede the flow of people into United States, फ्लो ऑफ पीपल कहें, आइडियाज़ कहें या प्रोडक्ट्स कहें, जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का मानना यह है कि जॉबलेसनेस लाइक सिचुएशन वहाँ जो हुई है वो ड्यू इन पार्ट टू ग्लोबलाइजेशन है। फिर नेक्स्ट है एंड डेमोक्रेटिक रिसेशन। चूँकि आप लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है सिंस द टाइम पीरियड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेसी इज इन रिसेशन। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब अगर देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, इंडिया है, टर्की है, ब्राज़ील है एंड सो फोर्थ, ये वो तमाम जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसीज थे वहाँ डेमोक्रेसी इन रिसेशन है, रिसीड कर रही है। जबकि एक अल्टरनेटिव मॉडल डेमोक्रेसी की जगह आ रहा है जो कि चाइनीज़ मॉडल है। तो एक यूएस के लिए के जो मॉडल्स हैं या जो फिलॉसफीज है, इकोनॉमिक फिलॉसफी हो चाहे पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, उनके लिए अल्टरनेटिव फिलॉसफी सामने आ रही है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को डर है कि वो जो अल्टरनेटिव फिलॉसफीज है वो कहीं यूनाइटेड स्टेट्स की जो फिलॉसफीज हैं लाइक डेमोक्रेसी, रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कंसेप्शंस हैं, उनको रिप्लेस ना करें। एक थ्रेट चाइना से ये है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चाइना इज इन्वेस्टिंग डेयरली ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। चूँकि टेक्नोलॉजी डेटा के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू वेपन है या न्यू सोर्स टू बिकम ग्लोबल पावर है। तो चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या चाइना टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अब टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है चाइना उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है जिनके थ्रू चाइना इन फ्यूचर और चाइना इज लाइकली टू सप्लांट यूनाइटेड स्टेट्स। इस टॉपिक टाइटल है उसमें एक टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ की है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जो कि हम आगे देखेंगे। अगर चाइना टेक्नोलॉजिकली वेल ऑफ होता है या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाइना के पास होती है, तो उस केस में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स का जो सैंक्शन रिजीम है या जो एबिलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज़ पर सैंक्शन लगाकर उनको ग्लोबल इकोनॉमी से साइड लाइन करता है, चाइना इस एबिलिटी को स्नैच कर सकती है। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना से ये डर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चाइना इज ट्विस्टिंग माइंड्स देन आर्म्स थ्रू इट्स वर्ल्ड वाइड कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूशंस। अब एक सॉफ्ट पावर का कंसेप्शन है या स्मार्ट पावर का कंसेप्शन है, जिसमें जोसेफ नाई का कहना है कि इस इरा में ट्विस्टिंग माइंड्स इज मच बेटर देन ट्विस्टिंग आर्म्स।
तो चाइना अपने सॉफ्ट पावर के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज एंड सोसाइटीज़ को अपने कल्चर की तरफ, अपने सिस्टम्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिस्टम है या जो वेस्टर्न फिलासफीज़ हैं वो इस इरा में इररेलेवेंट हैं, बिकॉज वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू ये शो किया है कि दे रिलाई मोर ऑन हार्ड पावर देन ऑन स्मार्ट एंड सॉफ्ट पावर। सो चाइना सॉफ्ट पावर के थ्रू कंट्रीज एंड सोसाइटीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। फाइनल पॉइंट इसमें है, China is introducing an alternative interbank payment system to the detriment of the US. United States अब जो बहुत सारे जो मेजर इकोनॉमीज है उनके अपने क्लियरिंग हाउसेस हैं या उनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू वो इंटरस्टेट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं या फ्लो ऑफ मनी है उसको कंफर्मेशन या कंफर्म करने के लिए उनके पास अपने सिस्टम्स हैं। हम उनके लिए टर्मिनोलॉजी है क्लियरिंग हाउस वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। यूएस का जो क्लियरिंग हाउस जो फ्रेमवर्क या रजीम है उसको हम कहते हैं CHIPS, और दूसरा जो सिस्टम है जो कि बेल्जियम बेस करता है वो है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जिसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। इन दो सिस्टम्स के अगेंस्ट चाइना एक पैरेलली अपना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसको हम कहते हैं CIPS। यानी अगर चाइना इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड या काउंटेबल या कंसिडरेबल नंबर ऑफ कंट्रीज में चाइना अगर इस सिस्टम को प्रैक्टिस एंड फॉलो करवाता है तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स की जो एबिलिटी है सैंक्शन लगाने की या सैंक्शंस लिवाई करने की जो एबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इनफेक्टिव होगी। सो ये सर्टेन ऐसे एक्शंस हैं या ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से चाइना को यूएस को अपना स्ट्रेटेजिक राइवल कंसीडर करता है। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया इसमें है टेक्नोलॉजी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टेक कर्टन इन द न्यू कोल्ड वॉर। जैसे कि प्रीवियस या ट्रेडिशनल जो पुराना जो प्रीवियस सेंचुरी में जो कोल्ड वॉर थी बिटवीन रशिया एंड यूएस और सोवियत एंड यूएस, उसमें बर्लिन वॉल थी जो कि डिवाइड कर रही थी टू राइवल्स को। तो इस केस में जो आयरन कर्टन है वो टेक कर्टन है, अनलाइक द प्रीवियस कोल्ड वॉर। सो इसमें अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या है या स्विफ्ट सिस्टम क्या है। एक ऐसा रेलम है जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन रहा है, एक ऐसा पिविटल पॉइंट है जो कि बड़ा रोल प्ले करेगा इस न्यू कोल्ड वॉर में। स्विफ्ट इज एन एक्रोनिम ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो स्विफ्ट जो सिस्टम है वो बेल्जियम में बेस करता है। इस सिस्टम के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज जब आपस में ट्रेड या इकोनॉमिक जब इंटरेक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस केस में एक मैसेजिंग सिस्टम है बेसिकली ये, जिसमें अगर एक कंट्री में मौजूद कोई इंडिविजुअल अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करता है, फॉर इंस्टेंस अगर एक पाकिस्तानी बाहर से किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है तो उस प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो हम ट्रांजैक्शन यहाँ से करते हैं, इस ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन के लिए जो सिस्टम है उसको हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम कह सकते हैं। The Swift payment system is based in Belgium and founded in 1973 by 239 banks, and its membership expanded in 1987 to include financial institutions operating in securities and money markets। यानी इस सिस्टम को 1973 में बनाया गया था by 239 countries। फिर बाद में इस सिस्टम में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF और जितने भी बैंक्स हैं कमर्शियल हों या हमारे पास जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी शामिल हुए। सो पूरा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कंफर्मेशन पर बेस करता है कि अगर ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरी की तरफ है तो उस केस में ऐसा कौन सा सिस्टम है या ऐसे कौन से वेस है जिनके थ्रू हम कंफर्म कर सकें कि जो सेंडर है उसने जो ट्रांजैक्शन या गिवन अमाउंट ऑफ मनी है उसको सेंड किया है कि नहीं। जिस सिस्टम के थ्रू ये कंफर्मेशन होती है वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट है, अब इसके बारे में फर्दर डिटेल्स, मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस टू quickly, accurately and securely send and receive information about money transfers and transactions। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस मनी ट्रांसफर एंड ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं। फिर आगे है, बिकॉज many institutions behind it rely on US goodwill। अब चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे पर बात की है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जिसमें नोटेबली हमारे पास जो जिनको आज भी हम कहते हैं ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंस्टीट्यूशंस US लेड हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का जो ग्रिप है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस है ऑन स्विफ्ट सिस्टम वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो because of many of the institutions behind it rely on US goodwill, the Swift payment system the Belgian government began sharing data with United States after 9/11 attacks।
9/11 तक यूनाइटेड स्टेट्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, या जो डेटा शेयरिंग का काम था विथ यूएस वो नहीं होता था, या बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी, या स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता था टिल 9/11। लेकिन 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जो डेटा शेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया, और डायरेक्टली अब यूनाइटेड स्टेट्स डेटा रिसीव करता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और स्विफ्ट सिस्टम। So, because of many of the institutions behind it rely on US goodwill, it began sharing data with the US after 9/11, enabling US to track financial transactions worldwide. So, United States के पास अब सारा डेटा रिसीव होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया जहाँ में जहाँ से अगर एक ऐसी कंट्री जिसका रिलेशन कोई डायरेक्टली उसके साथ रिलेशन यूएस के साथ ना हो, अगर वो किसी और कंट्री में ट्रांजेक्शन, फॉर इंस्टेंस हम पाकिस्तान में बैठ के अगर फिलिपाइंस और ब्राज़ील अगर मनी ट्रांजेक्ट करते हैं, तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स के पास इंफॉर्मेशन रिसीव होती है हमारी कि मनी ट्रांजेक्ट हुई है या ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम पाकिस्तान टू ब्राज़ील। तो ये हमारे पास जो फैसिलिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अक्रॉस द ग्लोब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका जो रिकॉर्ड है या डेटा है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास अवेलेबल है। फिर आगे है सिंस देन The United States started weaponizing economic choke points and financial institutions to press nations not toeing to its line. तब से लेके आज तक यूनाइटेड स्टेट्स डिफरेंट नेशंस, नोटेबली नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, और बहुत सारे कंट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं मानते उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाता है। वजह उसकी सैंक्शंस की जो इफेक्टिवनेस है वो इसी वजह से कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास ग्लोबल इकॉनमी या जो ट्रेड है उसकी नेक यूनाइटेड स्टेट्स के पाम में है। अब यूनाइटेड स्टेट्स चूँकि डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो अपने सैंक्शंस के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज़ को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात ना माने, अगर नहीं मानते तो उस केस में यूएस उन कंट्रीज़ को इस सिस्टम से उनको साइड लाइन करता है। सिस्टम यानी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अगर कोई कंट्री डिसइंटीग्रेट या डिस्कनेक्ट होती है तो उस केस में वो कंट्री एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या ट्रांजैक्शन नहीं वो कर सकती। सो यूएस के पास ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है। फिर आगे एक केस स्टडी है, ईरान इज इफेक्टिवली कट ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ईरान हो या करंटली रशिया इज अंडर यूएस सैंक्शन रिजीम, तो यूनाइटेड स्टेट्स अब इसी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस इंप्लीमेंट कर लिवाई करता है, और इसी सिस्टम की वजह से यूएस का जो सैंक्शन रिजीम है वो इफेक्टिव है। इसमें फाइनल पॉइंट है, डॉलर स्टैंडिंग एज ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी एंड रिजर्व करेंसी एंड यूएस कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिजीम्स मेक द कंट्रीज पोटेंशियल टू रिवॉर्ड एंड पनिश अदर्स इफेक्टिव। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू सैंक्शंस लिवाई कर सकता है, दूसरा जो उसके पास जो आर्सेनल्स हैं वो डॉलर्स हैं, जो कि यूएस डॉलर्स जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी एंड रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर एक्ट करता है। साथ ही साथ वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर यूएस का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। अब उन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात कर लें, आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस, फैटफ एंड सो फोर्थ। तो ये सर्टन ऐसे यूएस के पास आर्सेनल्स या वेपन्स है जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स बिहेवियर और कोर्स करेक्शन के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को और इन फ्रेमवर्क को यूज़ करता है।